So m square plus 3 equal to 0. M square will become minus 3. So m is equal to plus minus under root minus 3. Plus minus under root minus 3. So it means m is equal to plus minus root 3 iota. So these are the complex numbers. These are the complex numbers. This is the imaginary part of the complex number. So yc will become c1 cos under root 3 x plus c2 sin under root 3x. These are the two solutions. So these are the two solutions. C1 cos under root 3x plus C2 sin under root 3x. These are the solutions of YC. So anything do you want to ask? Any confusion? ये फार्मूला हमने बताया था कि अब ये अगर रूट जो है m के कॉम्प्लेक्स हो तो रियल पार्ट जो है e रेज टू पावर रियल पार्ट इंटू x हो जाता है और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है इमेजिनरी पार्ट को c1 cos the imaginary part into x plus c2 sin imaginary part into x. यहाँ चूंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट नहीं है तो e रेज टू पावर रियल पार्ट इसमें से गायब हो गया पावर 0 हो गई रियल पार्ट 0 है तो 0x e रेज टू पावर 0x हो गया तो दैट इज इक्वल टू 1 e रेज टू पावर 0x इक्वल टू 1 तो इसलिए जो है हमारे पास यही आंसर आया है 6097 तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन now we will find the particular solution so I am going to rub it if you have any question you may ask right now otherwise I am going to rub it तो मैं इसको रब कर देता हूं for yp पैसे चाहिए सुबह पैसे चाहिए बेटा कितने दूं ये ज्यादा दूं 1000 दे
Okay. So for yp, g of x is equal to minus 48 x square e raised to power 3x. तो ये अल्जेब्रिक पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है. तो अल्जेब्रिक पार्ट का क्या हो जाएगा? yp will become x square मैक्सिमम पावर है. It will become ax square plus bx plus c into the imaginary part e raised to power 3x. Sorry, into the exponential part that is e raised to power 3x. तो ये हमारे पास yp आ गया. क्या हुआ? क्यों? So yp dash, the first derivative, yp dash will become, here we will use a into b, the formula u into v. U into v formula will be used. So this will be the derivative of the first. This is u and this is v. So derivative of u, this will become 2ax plus b into v e raised to power 3x plus the first function ax square plus bx plus c into the derivative of e raised to power 3x. It is 3 e raised to power 3x into 3. The derivative of 3x will be 3. तो वो 3 हम यहां लिख देंगे. So this is the derivative of first function. Ax square will be 2ax, bx will be b, and c will be 0. Therefore, I did not write the derivative of c with 0 into the second function plus the first function ax square plus bx plus c into the derivative of e raised to power 3x. It will become e raised to power 3x into the derivative of 3x is 3. So 3 into e raised to power 3x. ये इसका हो गया first derivative yp का. Now we'll take the second derivative yp double dash. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका डेरिवेटिव 2ax का ये भी u इंटू वी, यहां भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा. दिस इज u, दिस इज v. So we'll write the formula, we will put the formula of this one. Derivative of 2ax will be 2a. The derivative of b is 0. So there's no need to write b. The derivative of b is 0. So we will write the derivative of first function into the second function plus first function as it is लिख देंगे 2ax plus b into the derivative of e raised to power 3x will be e raised to power 3x plus 3 into 3. So ये 3 हम यहां लिख देंगे. ये इन दो का डेरिवेटिव हो गया. इसी तरह इसका करेंगे. सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में नहीं आया. फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में नहीं आया. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव 2ax हो गया बेटा, bx का b हो गया. ये सेकंड एज इट इज लिख दिया. फिर इसका डेरिवेटिव पावर 3x का 3 e raised to power 3x into 3 और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया. तो इसमें क्या मुश्किल है? इसका डेरिवेटिव लिख दिया, ये हो गया, ये एज इट इज लिख दिया. फिर इसका डेरिवेटिव लिख दिया 3 into e raised to power 3x. ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया. ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. सर ये एज इट इज क्यों हम लिखें? हम तो सिर्फ एक दफा लेंगे ना डेरिवेटिव. तो एक ही दफा तो लिया है भाई, 2 दफा किसने लिया है? इसका डेरिवेटिव ये आ गया
ये एज इट इज लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया और ये एज इट इज लिख दिया। u इंटू वी का फार्मूला याद है या नहीं है? पहले फार्मूला अच्छा याद अच्छा करो, अच्छा, पहले फार्मूला सही याद सर करो सही। फिर बोलो। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। यहां भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, यहां भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। तो यहां u इंटू वी का फार्मूला लगा, 2ax प्लस बी का डेरिवेटिव 2a आ गया, इसका 0 हो गया, 2ax का 2a हो गया, इसका 0 हो गया, तो सिर्फ 2a बचा, इनटू सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर 3x। फिर इसका e रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 3x इंटू 3 हो गया, और फर्स्ट फंक्शन 2ax प्लस बी एज इट इज लिख दिया। ये इनका डेरिवेटिव हो गया। अब इसी तरह इसका लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस बी आ जाएगा, और ये एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज लिख देंगे। फिर इसका डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख देंगे प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर, और ये एज इट इज लिख देंगे फंक्शन ये एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया, ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया फर्स्ट फंक्शन, और e रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव 3e रेज़ टू पावर 3x। सो वो 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह ये दो इसके हो गए, और ये दो जो है इसके हो गए, एक और ये दो, ये यहां से यहां तक एक टर्म, और यहां से यहां तक दूसरी टर्म, यहां से यहां तक तीसरी टर्म, और ये प्लस से फिर ये चौथी टर्म। तो दो इसके टर्म बन जाएंगे, दो इसकी टर्म बन जाएंगे, क्योंकि u इंटू वी यहां भी लगेगा, u इंटू वी से दो टर्म बन जाएगी, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, दो टर्म्स होगी। इसी तरह इसमें भी u डैश वी प्लस v डैश यू, तो दो टर्म उसमें हो जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो मोहसिन अली, मोहम्मद उमर एंड दानियाल सुल्तान 62008, मोहम्मद उमर 61931 और दानियाल सुल्तान 59288। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर ले, ओपन करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओपन कर ले इसको, ये तो ओपन ही है, 2a e रेज़ टू पावर 3x, इसको ओपन करें, 6ax e रेज़ टू पावर 3x, 3b e रेज़ टू पावर 3x, इसको ओपन करेंगे, 6ax e रेज़ टू पावर 3x प्लस 3b e रेज़ टू पावर 3x, इसको ओपन करेंगे, प्लस 9ax स्क्वायर e रेज़ टू पावर 3x प्लस 9bx e रेज़ टू पावर 3x प्लस 9cx, 9c सॉरी x नहीं है, 9c e रेज़ टू पावर 3x, ये हमारे पास ओपन हो गई। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो सकती है, लेकिन रहने दें, अब फिर यहाँ जगह भी नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। अब ये हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और yp चाहिए, दो टर्म चाहिए। तो yp हमारे पास ये है और yp डैश ये है, तो ये हम दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे और इस तरफ यही रहेगा। ओके, नाउ वी, यहां तक समझ में ना आया तो बेटा पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया किसी को। ये जरा चूंकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसका जरा डेरिवेटिव लेने में थोड़ा पेचीदगी होती है, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको करते चले जाएं तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया 2ax प्लस b, और ये एज इट इज लिख दिया, फिर ये एज इट इज लिख दिया, और e रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव लिख दिया, वो 3
e raised to power 3x into डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो जाएगा, वो यहां लिख दिया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव, यहां भी u इंटू वी है, यहां भी u इंटू वी है, तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट वाले के इस टर्म का, इसका हो गया 2a, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस ये एज इट इज लिख दिया 2ax प्लस b, और e रेस्ट टू पावर 3x का डेरिवेटिव लिख दिया, वो e रेस्ट टू पावर 3x इंटू 3 हो गया। ये दोनों का डेरिवेटिव आ गया यहाँ। अब इसको देख लेते हैं, इसमें 3 कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे फर्स्ट वाले का, ये 2ax प्लस b इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x हो गया। फिर हम ये एज इट इज लिख देंगे, 3 कांस्टेंट है वो लिख दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज इट इज लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर 3x इंटू 3, तो 3 और 3 ये 3 था, तो ये 9ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c e रेस्ट टू पावर 3x हो गया। तो यहां तक ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसको ओपन कर दिया, 2a e रेस्ट टू पावर 3x, 6ax e रेस्ट टू पावर 3x, 3b e रेस्ट टू पावर 3x, फिर इसको 6ax e रेस्ट टू पावर 3x, 3b e रेस्ट टू पावर 3x, 9ax स्क्वायर e रेस्ट टू पावर 3x, 9bx e रेस्ट टू पावर 3x, 9c e रेस्ट टू पावर 3x, ये आ गया फाइनल शक्ल। अब हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 1। substituting in equation 1, y डबल डैश ये पूरा है, ये yp डबल डैश है, ये पूरा लिख देंगे, 2a e raised to power 3x, 6ax e raised to power 3x, 3b e raised to power 3x, 6ax e raised to power 3x, 3b e raised to power 3x, 9ax square e raised to power 3x, 9bx e raised to power 3x plus 9c e raised to power 3x, ये तो y डबल डैश हो गया, प्लस 3y प्लस 3 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3ax स्क्वायर e रेस्ट टू पावर 3x प्लस 3b x e रेस्ट टू पावर 3x प्लस 3c e रेस्ट टू पावर 3x, ये 3y हो गया, 3 बाहर था, y था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x, तो हमने ये ओपन करके लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस 48 एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x। अब्दुल रहीम 62183, ओके।
फॉर यहाँ एक्स स्क्वायर वाले हैं तो एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x से कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो ई रेस्ट टू पावर 3x यहाँ सब में मौजूद है, कोई भी टर्म ई रेस्ट टू पावर 3x के अलावा नहीं है। हाँ, किसी में एक्स स्क्वायर है, किसी में एक्स है, किसी में एक्स भी नहीं है, लेकिन ई रेस्ट टू पावर 3x सब में है। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x। तो क्या है हमारे पास, यहां से देखें एक्स स्क्वायर वाले कौन से हैं, ये है 9a एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3x वाला 9a है, और ये है 3a है, और कोई नहीं है। उस तरफ -48 है, so that will become 12a is equal to -48. A will become -48 upon 12 will be -4. -48 upon 12. A is equal to -48 upon 12, that is -4. So this is the value of A. In the same way, we will find the value of B. B, where is B? B is the coefficient of x e raised to power 3x. x e raised to power 3x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे हम। Equating the coefficients of x e raised to power 3x, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है 6a x e raised to power 3x, फिर ये 6a है, तो 6a फिर 6a, this is 6a, then this 6a, x square, 9b, there's no x square, plus 3b, that's all, and there is 0, यहां कोई x e raised to power x नहीं है, 0. So it will become 6a plus 6a will be 12a, 9b plus 3b will be 12b. It will become 12a plus 12b equal to 0. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -4, 12 into -4 plus 12b equal to 0. 12 into -4 -48 plus 12b equal to 0. So b will become -48 उस तरफ जाएगा, plus 48, so b will become 4. This is the value of b. Now we have to find the value of c. We will find the value of c. c हमारे पास कांस्टेंट्स में है, e रेज़ टू पावर 3x, c यहां भी है, जहां भी है c, एक तो ये नजर आ रहा है e रेज़ टू पावर 3x, तो e रेज़ टू पावर 3x वाले सब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे जिसमें ना x हो ना x स्क्वायर हो, इक्वेटिंग the coefficients
of e raised to power 3x only. So e raised to power 3x में हम यहां से शुरू करते हैं, 2a है, ओनली e raised to power 3x, 2a है, इसमें x नहीं है, ये x है, फिर 3b है, इसमें भी x है, फिर 3b है, x स्क्वायर x, फिर 9c है, x स्क्वायर x, फिर 3c है, and on the other side is 0. On the other side is 0. तो ये हमारे पास आखिरी वो है, नीचे नहीं हो सकता, so I'm rubbing it. टू ए, 3b, 3b, 6b, 9c plus 3c will be 12c equal to 0. Put the value, 2 into a is minus 4, plus 6 into b is 4, plus 12c equal to 0. It will become minus 8 plus 24 plus 12c equal to 0. 16 plus 12c equal to 0. So 12c minus 16 and c is equal to minus 16 upon 12. 4, 3. So c is equal to minus 4 upon 3. तो ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ये इसमें इक्वेशन पुट कर देंगे। Therefore, yp is equal to ax square. So that is minus 4x square plus bx 4x plus c minus 4 upon 3 into e raised to power 3x. ये हमारे पास yp आ गया। yp हमारे पास था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू e रेज़ टू पावर 3x। सो ये हमारे पास माइनस ए की जगह माइनस 4 पुट किया, बी की जगह 4 पुट किया, सी की जगह माइनस 4 अपॉन 3 पुट कर दिया, e रेज़ टू पावर 3x। सो हमारे पास yp विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अपॉन 3 इंटू e रेज़ टू पावर 3x। सो द जनरल सोल्यूशन
y इज इक्वल टू वाई सी। वाई सी क्या था हमारे पास, C1 e रेस्ट टू पावर C1 cos अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x प्लस वाई पी ये था, ये हम लिख देंगे -4x², सॉरी ये अंदर है ब्रैकेट के, तो माइनस इससे पहले प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस -4x² प्लस 4x -4/3 इंटू ई रेस्ट टू पावर 3x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया, YC प्लस YP। कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, वरना इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, और इस मीटिंग के 5 मिनट्स रह गए, और वैसे हमारा मगरिब की अजान हो रही है, तो इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं। कोई चीज पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? नहीं, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं भाई। आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके सर।